Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well. As you know, we have started 20 days 20 topic series on our YouTube channel Start Smart with Sonia ma'am. So today is day 9 and today we will discuss the important questions of biomolecules. Okay, this will going to be the last chapter of our organic chemistry and tomorrow onwards we will do the inorganic chemistry, right? So let's discuss the important question from this chapter. Yes, the very first question, and it is very easy, the difference between DNA and RNA. So, you have to prepare it for 2 marks or for 3 marks, for 2 marks. Okay, so you can prepare 5 important difference from between DNA and RNA. The first one is DNA is known as deoxyribonucleic acid. DNA is deoxyribonucleic acid, while RNA is ribonucleic acid. Okay, first one is there expanded form deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Second one is, if we talk about the stability, DNA is more stable as compared to RNA. RNA is less stable. Less stable means it has short lifetime. Okay, DNA is found in the nucleus, in the mitochondria and in the plastid in case of plant cell, while RNA is found in the nucleus and cytosol. So you can skip this point. Okay, the function of DNA is digital genetic data storage. Okay, and the RNA is dynamic function. They can perform various function and many varied functions. Okay, if we talk about the structure, it is long nucleotide chain and it is short nucleotide chain. Yes, this one is very important point. Two complementary strands are present in the DNA and one strand is present in the RNA. Okay, fine. Okay, if we talk about the backbone, so both have the inorganic phosphate की backbone होती है DNA में भी RNA में भी, तो नॉट अ बिग डिफरेंस, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोबेसिस. यस, इन द DNA थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वेनिन, these are 4 nucleobases are present, while in case of RNA, cytosine, adenine, guanine, instead of thymine, uracil is present. Okay, इन RNA थायमिन इज नॉट प्रेजेंट. थायमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? यूरासिल प्रेजेंट होता है, तो आप ये देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज यू कैन राइट एडेनिन बॉन्डेड विद द थायमिन इन DNA, while adenine bond get form bond with uracil in case of the RNA. This is the fourth or fifth major difference you can write. Okay, fine. So first one is DNA is known as deoxyribonucleic acid, while RNA is known as ribonucleic acid. Second one is DNA is very stable, RNA is less stable. Okay, third you can write it has 2 strands. Okay, both are complementary to each other, while RNA form a single stranded. Nucleic, if we talk about the bases present in the DNA, it's thymine, cytosine, adenine and guanine, while in case of RNA it's uracil instead of thymine. Okay, adenine binds with thymine in case of the DNA, while adenine bind with uracil in case of the RNA. I hope आप ये 5 कर लें difference, that is more than enough. Okay, let's do the next question, which is the difference between nucleoside and nucleotide. One second most important question, nucleoside and nucleotide. So nucleoside is basically when we have the pentose sugar. This is the pentose sugar. Okay, and this is the base. If we have the pentose sugar and base, two things. ओके, अगर हमारे पास क्या है, शुगर है और बेस है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड. वाइल ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर हैविंग अ पेंटोज शुगर प्लस अ बेस प्लस अ फॉस्फेट ग्रुप, अगर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सा? पेंटोज शुगर है प्लस बेस है, मैं बी लिख लेती हूँ, प्लस फॉस्फेट ग्रुप है PO4 3 नेगेटिव. ओके, अगर हमारे पास ये चीज़ें प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड. आप किस तरीके से याद रख सकते हैं? आपको याद रखने का तरीका ये हो सकता है,
देखिए न्यूक्लियोसाइड में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसाइड में प्रेजेंट है S, न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है T। तो पहले क्या आता है, पहले आता है S, पहले आएगा S, ये पहले आएगा और फिर T बाद में आएगा। ओके, तो इस बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं, इस बेसिस पे आप कह सकते हैं पहले S आएगा फिर T आएगा। तो पहले S मीन्स जिसमें 2 थिंग्स विल बी प्रेजेंट, T मीन्स जिसमें 3 थिंग्स विल बी प्रेजेंट। 2 थिंग्स क्या होंगी वो, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, 2 थिंग्स न्यूक्लियोसाइड में। 3 थिंग्स क्या हो जाएंगी, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, 3 चीज़ें हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो फर्स्ट आप ये लिख सकते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस प्लस शुगर। इसमें आप क्या लिख सकते हैं टाइड में, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस शुगर प्लस पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप। ओके, नेक्स्ट इज आप इसमें क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड को हम कैसे लिखेंगे, एडिनोसाइन। देखिए एडेनिन प्लस राइबोज शुगर, एडिनोसाइन, ग्यूनोसाइन, साइटिडीन एंड डीऑक्सीथाइमिन। One more you can write is it is basic in nature. Nucleoside is basic in nature, while nucleotide is acidic in nature. One more difference you can write over here. Okay, this is known as adenalic acid, adenosine plus phosphoric acid. Phosphate group is also there. This is the adenosine complete and phosphate group is also present in the nucleotide. Okay, I hope आपको ये 3 difference clear हो चुके होंगे. First is this one, second basic acidic and the name you can write. Okay, let's do the next question, question number 3 of today's videos. Difference between fibrous and globular protein. One more difference है ना, fibrous protein it is a protein made up of the linear molecules. Okay, here the amino acids basically attached in the linear form lie side by side to each other and forms like fibers. Okay, while in the case of globular protein the polypeptide chain or the chain made up of amino acids is folded. It is not in line by line format, it is folded or compact form forming a spherical shape structure. फॉर एग्जाम्पल आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ पर कैरेटिन लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो फाइब्रस नाम ही है, देखिए फाइब्रस तो मतलब कैसा होएगा, फाइबर जैसा होगा है ना, लीनियर होगा। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये कैसा होएगा, लीनियर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ग्लोबुलर है तो ये कैसा होएगा, ये होगा स्फेरिकल। फर्स्ट डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, फाइब्रस वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, जबकि ग्लोबुलर क्या होंगे, वाटर में। एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपको पता है एग में प्रेजेंट होता है and it is soluble in water. Okay, next point is you can write these are the main structure units of animal tissue. Fibrous protein are the main structural units and these act as enzymes and antibodies. Okay, in case of fibrous protein, polypeptides are held through intermolecular hydrogen bonding. One more difference you can add, through intermolecular hydrogen bonding, and here they form intramolecular hydrogen bonding. So these are the 4 major differences you can write. First is they present in linear form. Okay, and globular protein is in spherical form. Fibrous is insoluble in water and globular is soluble in water. Fibrous is the main structure unit of animal tissue and globular protein mainly present in the forms of antibodies or enzymes. And fibrous tissues, they bonded through intermolecular hydrogen bonding. Globular proteins, they bonded through intramolecular hydrogen bonding. Okay, so 3 main differences you have to do: the difference between DNA, RNA, difference between nucleoside, nucleotide, and the difference between fibrous protein and globular protein. Okay, I hope this is very clear to all of you. Next question is why vitamin, very most of the time ask this question, why vitamin C is used to take in a regular diet. Not even in theoretical point of view, in the case when you are having your practicals and you are having your viva, the question is very most favorite for the examiners. ठीक है, सो वो मोस्टली काफ़ी बार आपसे पूछ लेते हैं वाई विटामिन सी इज़ यूज टू टेक इन आर रेगुलर डाइट. सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल. विटामिन सी इज़ वाटर सॉल्यूबल विटामिन. इट इज़ वाटर सॉल्यूबल विटामिन. तो अगर ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन है तो ये हमारे बॉडी से
एक्सक्रीट हो जाएगा, वेस्ट के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इट विल एक्सक्रीट थ्रू आवर बॉडी, सो वी यूज टू टेक इट इन आर रेगुलर डाइट, हमें ये रेगुलरली बेसिस पर लेना चाहिए विटामिन सी. Okay, next question is which is coming in your exam is they will give you the disease and you have to select which option is right and which diseases belong to which vitamins. Okay, yeah, which vitamin deficiency cause what kind of disease. For example, if we talk about night blindness, ठीक है, और जीरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थैल्मिया, दिस इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थैल्मिया. सेकेंड इज देखिए बी से, ये बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, बताइए. बेरी बेरी बी से है ना, वो किसी कमी से होगा, B1 की कमी से होगा. बेरी बेरी, बेरी बेरी का मतलब होता है कि बॉडी में वीकनेस रहना, है ना, ग्रोथ कम, रिटार्टेड ग्रोथ होना, दैट इज बिकॉज ऑफ द बेरी बेरी. Next is cirrhosis. Cirrhosis basically and digestive disorder, burning sensation to the skin. This is because of the deficiency of vitamin B2. Okay, deficiency of vitamin B2. ये अभी प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था. कन्वर्शन जिसको सीजर्स भी बोलते हैं ना, कई बार क्या होता है सीजर्स आने लगते हैं बॉडी में, सीजर्स पड़ जाते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6. ध्यान रखना है, इसका केमिकल फॉर्मूला इज पायरिडॉक्सिन. केमिकली इट इज बिटवीन B2 इज नोन एज राइबोफ्लेविन एंड बिटवीन B1 इज नोन एज थायमिन. ओके, ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. परनीशियस अनेमिया, इट इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. मोस्ट इंपॉर्टेंट, समवेयर टाइम इट इज आस्क्ड, परनीशियस अनेमिया occurs due to the deficiency of vitamin B12. ध्यान रखना है के की नहीं, के और B12 में कन्फ्यूजन होता है. के की कमी से होता है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के. रिकेट्स, रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से. स्कर्वी, स्कर्वी होता है ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, जाड़ों से दांतों से खून आना, दैट इज स्कर्वी. ये किसकी वजह से होता है, विटामिन सी, केमिकली नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड. ओके, इस केस में हमें सिट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए. इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ RBCs एंड मस्कुलर वीकनेस, मोस्टली ऐसे आ जाता है, इंक्रीजेज फ्रेजिलिटी ऑफ RBCs. इस केस में आ जाएगा व्हाट, विटामिन ई. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, किसी कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, किस विटामिन की कमी से, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. आप थोड़ा इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आप इसको कर लेंगे. ठीक है, अब इनमें से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, एक मैं आपको बता देती हूँ. कन्वर्शन ध्यान रख लेना, फ्रेजिलिटी ऑफ RBCs, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, बी वेरी वेरी, सी स्कर्वी, ये चीज़ें ध्यान रह जाएंगी. ठीक है, ओके, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शुगर इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, वाई इट इज कॉल्ड सो. इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं और इसे ऐसा क्यों कहते हैं. तो ध्यान रखना है, सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर. आपको रिटेंशन इन्वर्जन पता है ना, इन्वर्जन पता है कि अगर सपोज वो पहले पॉजिटिव है, नेक्स्ट में वो क्या आ जाएगा, लेवियो. पहले अगर वो डेक्स्ट्रो था, डी कन्फिग्रेशन का था, डेक्स्ट्रोटेटरी, तो अब वो हो जाएगा लेवियो रोटेटरी. कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन. और ये जो शो करता है उसको हम बोल देते हैं इन्वर्ट शुगर. ठीक है, इन्वर्ट शुगर. तो सुक्रोज के केस में क्या होता है, जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो सुक्रोज पहले सुक्रोज कैसा है, डेक्स्ट्रोटेटरी है. जब इसकी क्या कर दी हमने, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दी, ठीक है, वाटर में एक डिजोल्व किया, तो सुक्रोज ब्रेक होता है किसमें, एक तो फ्रक्टोज में ब्रेक होता है ये सुक्रोज, और एक ब्रेक होएगा किसमें, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज. ठीक है, जिसमें जो ग्लूकोज होता है, सुक्रोज है डेक्स्ट्रोटेटरी डी, ग्लूकोज भी है डेक्स्ट्रोटेटरी डी, इनफैक्ट मुझे स्मॉल लेना चाहिए, और फ्रक्टोज है लेवियोरोटेटरी ए. ठीक है, सो लेवियोरोटेशन जो फ्रक्टोज का है ना, वो होता है ज़्यादा. वो कितना होता है, -92.40, ये है फ्रक्टोज का. जबकि जो डेक्स्ट्रोटेशन है ग्लूकोज का, वो होता है कम, +52.50. सो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस जो लेवियोरोटेशन है वो क्या है, वो है ज़्यादा. लेवियोरोटेशन हो जाता है ज़्यादा, डेक्स्ट्रोटेशन हो जाता है कम. दैट्स वाई आफ्टर द हाइड्रोलिसिस सुक्रोज
called as invert sugar. Sucrose called as invert sugar. Okay, because negative sign क्या हो जाएगा, एक तरह से ज़्यादा हो जाएगा, dextro sign क्या हो जाएगा, positive sign कम हो जाएगा after hydrolysis. That's why it's known as invert sugar. Okay, let's read it for once. Sucrose is dextrorotatory, but after hydrolysis gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose. Since the levorotation of fructose is minus 92.40 is more than that of the dextrotation of glucose, which is plus 52.50. The mixture is final. The mixture is what is the overall है ना, माइनस ज़्यादा है प्लस कम है, सो फाइनल द मिक्सचर विल बी लेवरोटेटरी. ओके, फाइनली क्या हो जाएगा, ये लेवरोटेटरी ज़्यादा हो जाएगा. दैट्स वाई द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज changes the sign of rotation from positive dextro to negative levo. That's we call it as invert sugar. Okay, I hope this question is very clear to all of you. Let's do the next question, which is how do you explain the presence of 5 OH groups in the glucose molecule? This is very important question. Not even they will ask to you to detect the presence of 5 OH groups. Okay, sometimes they will ask to gives you the different kind of reactions of glucose with different kind of reagent. For example, they have given you the glucose and you have to react the glucose with the HI. Okay, and what will be the product? The product will be N-hexane. So there are 6 complete reaction of the glucose with different reagent, in which you will get the 6 different products, and all the 6 reactions are very important, not only for your board exams but also for the NEET and JEE also. So this is a very important topic. Let's answer this question first of all. If how you will check the presence of 5 OH group, 5 OH group. So when we react ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड. ओके, अगर आप ग्लूकोज लेते हैं और उसको एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फाइनल आपको क्या मिलेगा कि जहाँ पर भी OH प्रेजेंट है ना, जितने भी OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं फ्रीली ग्लूकोज में, वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, एसिडिक एनहाइड्राइड से, या हम बेसिकली इसको बोलते हैं एसिटेट ग्रुप से वो रिप्लेस हो जाएंगे. ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. अगर हम ग्लूकोज लें CHO CHOH, मैं कंबाइन ले रही हूँ. ठीक है, 4 and CH2OH. इसको हमने क्या करवा दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, जो कि ये होता है C डबल बॉन्ड O O ठीक है, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड. जब इसके साथ ना हम ग्लूकोज की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या देखेंगे, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, वो हमें ये मिलने वाला है CHO. जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, कितने हैं, 4 तो ये रहे और 5. ठीक है, टोटल 5. इनकी जगह क्या आ जाएगा, इनकी जगह आ जाएगा ये पूरा का पूरा ये ग्रुप आके, ठीक है, अटैच हो जाएगा. 4 तो ये हो जाएंगे प्लस एक CH2 के साथ यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O and CH3. ठीक है, तो ये आपको एक फाइनल मिल जाएगा. इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि ये चीज़ हमें बताती है कि ग्लूकोज में कितने, ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है. कैसे पता चला, जब हमने इसकी रिएक्शन की तो OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो गए, एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप से वो रिप्लेस हो गए. ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिडिक एनहाइड्राइड. ओके, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एसिडिक एनहाइड्राइड, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. इसको क्या बोलेंगे, अब इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन द ग्लूकोज, एंड सिंस इट इज अ स्टेबल कंपाउंड 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू द डिफरेंट कार्बन एटम्स. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, before doing the next question or reactions of glucose, there is one of the important topic is denaturation of protein. Okay, देखिए डिफरेंस बिटवीन DNA RNA, fibrous and globular protein. Okay, DNA RNA, fibrous, globular protein, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, 3 डिफरेंस कर लेने हैं. विटामिन से आपको डेफिनेटली कर लेना है कौन सी डिजीज़ है, किसकी डेफिशिएंसी से हो रही है, और विटामिन सी को हमें रेगुलर डाइट में क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है. ठीक है, एक और ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मुझे अभी ध्यान आया जो, कि अगर हमें विटामिन का ध्यान रखना है कि विटामिन जो हैं वो 2 टाइप के हैं. ठीक है, ये आ जाता है
फैट सोल्यूबल हैं एंड वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। आप कैसे ध्यान रखेंगे कौन कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल है? तो फैट सोल्यूबल है कीड़ा, जो कीड़ा है वो फैट सोल्यूबल है। कीड़ा इज विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। वाटर सोल्यूबल कौन से होंगे? वाटर सोल्यूबल हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये क्या है? ये वाटर सोल्यूबल। तो आपको कीड़ा ध्यान रखना है। कीड़ा क्या करता है? कीड़ा फैट खाता है, तो फैट सोल्यूबल है। ओके, ठीक है, ये कर लेना आपको। नेक्स्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने कवर अप कर दिया आप लोगों के लिए। 5OH ग्रुप, इसी से हम ग्लूकोज की रिएक्शंस करेंगे। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कर लेते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो डीनेचुरेशन का मतलब होता है जो नेटिव प्रोटीन होता है। देखिए, जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। और जो नेटिव प्रोटीन है उसकी जो करैक्टरिस्टिक हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो नॉर्मल प्रोटीन है, जब हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर चेंज करेंगे, ठीक है। एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए टेम्परेचर चेंज, या हम क्या करेंगे, pH चेंज करेंगे। सो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं नेटिव प्रोटीन की, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा चेंज। इसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है प्रोटीन की, वो क्या हो जाएगी, जो इसकी स्ट्रक्चरल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए स्ट्रक्चरल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी चेंज। चेंज कहने का क्या मतलब है? चेंज कहने का क्या मतलब कि रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा क्यों कम होगा? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो पॉलीपेप्टाइड के बीच में बॉन्ड होंगे, बॉन्ड क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना इनमें, तो इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, फोल्डेड स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, ग्लोब्यूल्स जो होंगे वो फोल्डेड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। या हम ऐसा कर लो कि जो इसकी अल्फा हेलिक्स चेन है वो क्या हो जाएगी, जैसे ऐसे अल्फा हेलिक्स चेन बनी होती है इस तरीके से, आपने देखा, वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी अनकोइल। अब वो स्ट्रेट चेन सी बन जाएगी, अनकोइल हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन अपनी जिसकी स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो लूज कर देगा, ठीक है। उस जो स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लूज हो जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बेसिकली जो प्रोटीन था वो प्रोटीन नहीं रहा, उसकी जितनी भी स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं, तो उसको हम बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और उसकी वो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्यों ख़त्म हुई है, क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड थे, या बोलो जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, वो क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। जो कोइल्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर था वो कैसा हो गया, अनफोल्डेड हो गया, अनकोइल्ड हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हो गई, उसको हम बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है वो सेकेंडरी है ना, जो कोइल्ड होंगे उन्हीं का होएगा। सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन से केस में पॉसिबल है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे pH चेंज करें चाहे टेम्परेचर चेंज करें। इसके एग्जांपल्स आप क्या लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स देते हैं जैसे दूध से दही बनना, ठीक है। जो एग होता है, एग में एल्बुमिन होता है ना, जब उसको हम हॉट बॉयल करते हैं तो वो क्या होता है, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो उस वो क्या होता है, हार्ड स्टफ हो जाता है एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको टॉपिक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट इज द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की टोटल 6 रिएक्शंस है। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि हाउ यू विल प्रूव द प्रेजेंस ऑफ द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो उसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमने रिएक्शन करके दिखाई थी। ऐसी और भी सारी रिएक्शन है, जैसे ग्लूकोज की रिएक्शन सबसे पहले हम HI के साथ अगर करें तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे HI की स्लाइड ले रखी है क्या मैंने, हाँ। तो देखिए ग्लूकोज की सबसे पहली रिएक्शन यही है। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम करते हैं HI से तो इस समय हमें क्या मिलता है, सिंपल एल्कीन, ठीक है। यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा हेक्सीन। सेकंड है, अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, ये सेकंड रिएक्शन NCERT के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अगर आपको हाइड्रोक्सिलामीन के साथ करते हैं, देखिए हाइड्रोक्सिल और ये NH2 अमीन। तो हाइड्रोक्सिलामीन क्या करता है, ये बताता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन और HCN के साथ रिएक्शन दोनों बताते हैं कि ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये दोनों रिएक्शन का मेन मोटिव है बताने का।
तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, ये बना लेगा, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम, ग्लूकोक्साइम बनता है। जबकि अगर HCN से रिएक्शन करवाएंगे तो HCN क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइनाइड, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ये बना लेगा साइनोहाइड्रिन। तो दोनों के साथ रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन, ठीक है, एंड हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्सिल अमीन एंड HCN के साथ रिएक्शन, दोनों के साथ रिएक्शन क्या बताती है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज में प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन हमने एक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ देखी ली थी, जो हमें क्या बताता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमें पता चलता है कि क्या प्रेजेंट है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, गुड, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर के साथ, जब ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी ऑक्सीडेशन होती है एक्चुअल में, तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, एसिडिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सिमिलरली अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज की, तो दोनों यहाँ पे ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप और ये एल्डिहाइड ग्रुप दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, एसिड में चेंज हो जाएंगे, इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ग्लूकोज दे देंगे, एरो के ऊपर ब्रोमीन वाटर दे देंगे, आपके पूछेंगे ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, सैक्रिक एसिड बनेगा, एसिडिक एनहाइड्राइड बनेगा या एनहेक्सेन बनेगा, तो ध्यान रखना है ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ये 6 रिएक्शन से आपको ध्यान रखनी है क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे, ओके। एनहेक्सेन के साथ आपने ये कर ही लिया, ठीक है। तो 6 रिएक्शन है ग्लूकोज की और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही था, किसी भी तरह कुछ डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप बायोमोलिक्यूल्स से इतना कर लें, अगर आप नॉन मेडिकल से हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैम क्या करें क्या ना करें, तो आप ये इतने क्वेश्चंस कर लें, काफ़ी हैं, आपको पेपर में एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ग्लूकोज के 6 रिएक्शंस हैं, आप अच्छे से इनको कर लें, रिवाइज कर लें, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच अगेन फॉर द वॉचिंग, ओके, बाय बाय।